Hello class 7th. Today we are going to learn exercise 3.3. It's quite easy exercise. I'm just starting questions right now. Question number 1. Use the bar graph in figure 3.3 to answer the following questions. You can see the bar graph. In your book it is given. Uncle ji. Which is most popular pet and how many children have dog as a pet. So you can see most popular pet means the longest bar you have to see. I think cat should be the answer. You can see the bar representing cats is longest. So cat will be most popular pet. Now second part, how many children have dog as a pet? You can see dog, the bar representing dogs, it's 8. So 8 children have dog as a pet. So I have written answers. Cat is most popular pet and 8 children has dog as a pet. Now question 2. In similar manner, you can give answers. See, this is the bar graph and we have to answer the following questions. First, about how many books were sold in 1989, 1990, 1992. So in 1989 you can see it is very near to 200 but less than 200. So we can write it is actually more than 150 because it is above half of, means it is above 100, means more than half of 100 and 200. So it will be more than 150 but less than 200, means we can write it 160, 175. Approximate answer you can write 160, 175, 180. So any answer will do. I have written 180 for this. For next two I did not write answer, you can write it yourself. Answer 2. In which year about 475 books sold, about 225 books sold. 475 means you can see more than 400. I think it is 1990 and 225 it is 1992. You can see the graph. Now question 3. Means part 3. In which year were fewer than 250 books sold? You can see the graph. I have written answer 1989 and 1992. Now part 4. Can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? I have written answer. Yes, as the bar is very near to 200, so it will be more than 150 but less than 200, as I said earlier actually. Now question number 3. Construction of bar graph is there. You have given data, number of children in 6 different classes, and then you need to, how would you choose a scale? Answer the following questions. Represent the data on bar graph. So I have written a scale, table I have made, class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and number of children I have written. Now first of all I will show you the graph which I made. This is the graph. आप इसको ग्राफ शीट में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. डार्क लाइंस को मैच कर लीजिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. सबसे पहले this is x axis, here I am taking classes, and this is y axis, I am taking number of children. So you can see 1 unit is equal to 10 children and you have to write the unit also. It is very important part of the graph. Next you will keep on representing these. First 5th में 135 बच्चे हैं तो हमने 130 और 140 के एग्जैक्ट बीच में लगाना है. आपके पास यहाँ से यहाँ तक 130 से 140 तक 10 लाइंस होती हैं, आपको 5th लाइन पे लगाना है. एक लाइन एक को रिप्रेजेंट करती है. क्लास 6th में ऐसे ही
आपको अच्छा देखिए बार ग्राफ में क्या करना है कि यहाँ आप मार्क लगाएंगे, जैसे आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर लगाया है, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 3 लगाया, 4 लगाया, एक बार के बीच में आपको इक्वल डिस्टेंस छोड़नी है। जैसे 1 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं हम हर बार, तो आपको गैप रखना है, इक्वल गैप। जैसे बार की विड्थ 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए। आप आधा भी ले सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। 1 सेंटीमीटर आप लेंगे। ऐसे करके आप ग्राफ बनाते चले जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है। और इसके आंसर्स, स्केल हमने लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। मैक्सिमम बच्चे 5th क्लास में हैं, मिनिमम बच्चे 10th क्लास में हैं। रेशियो ऑफ क्लास 6th एंड क्लास 8 है 120/100, तो 6:5। 4th में हमारे पास डबल बार ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 में। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि आप डेटा पहले देख लीजिए। डबल बार ग्राफ इस तरह का है, और अब बार ग्राफ आप देख सकते हैं। 4th का देखिए, ऐसे सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट्स ले लेंगे, यहाँ आप मार्क्स लिख लेंगे। तो स्केल आपको लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश में देखिए, पहले 67, 70, फिर हिंदी में 72, 75। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट। आप चाहें तो अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर जैसे मैप में लिखते हैं वैसे लिख दीजिए कि भाई रेड कलर से आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट को किया और ग्रीन कलर से सेकंड को किया। अलग अलग कलरिंग कर सकते हैं इस पर। फिर ऐसे करके ग्राफ बनाते चले जाइएगा। ये हमने बना लिया। आप ध्यान रखिए कि इसमें कंपैरिजन है, इसलिए एक सब्जेक्ट एक साथ आएगा, कोई गैप नहीं। आप देख रहे हैं इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस, सोशल साइंस। लेकिन जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर वही बार ग्राफ की तरह इक्वल गैप आएगा। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिसमें होगा, जैसे इंग्लिश में देखिए 67 से 70 हुए, तो 3 नंबर इंक्रीज हुए। इसमें 72 से 65, इसमें तो कम हुए, इम्प्रूवमेंट हम मान ही नहीं सकते। 88 से 95 हुए, मीन्स 7 मार्क्स इम्प्रूव हुए। यहाँ 4 मार्क्स इम्प्रूव हुए और यहाँ 2 मार्क्स इम्प्रूव हुए। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मैथ्स में। आंसर में इसके यहीं लिख रहा हूँ, मैथ्स फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट। यहाँ देखिए फिर वही 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट, यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ 7 मार्क्स का, यहाँ 4 मार्क्स का, यहाँ 2 मार्क्स का। तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ, लीस्ट इम्प्रूवमेंट आपका सोशल साइंस में, सोशल साइंस में। थर्ड पार्ट है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे आ रहा है किसी में, यस, इन हिंदी, इन हिंदी। तो इस तरीके से इसके आंसर्स हो जाएंगे और तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक